So today we are going to start a new chapter, that is atomic structure, and again I will be taking up numerical based on this topic. Previously I covered some basic concepts of chemistry. I have made 14 videos on that, covering all the topics under that, all the numerical from various books I have covered in my previous videos on some basic concepts of chemistry. Now after that 11th grade में comes states of matter. इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत ही पहले मेरे वीडियोस हैं. Again they contain numerical on the topics, ideal gas equation and जो भी हमने states of matter grade 11 में हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं आई हैव कवर्ड इन दोज वीडियोस. सो नेक्स्ट चैप्टर इन द सीरीज कम्स एटॉमिक स्ट्रक्चर. ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो मेरा आज फर्स्ट वीडियो है, दिस इज वेरी बेसिक वेरी सिंपल वन. दिस अगेन इंक्लूड्स मोल कॉन्सेप्ट, इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये वीडियो अभी पहले इसी पे बनाती हूँ. देन आई टेकिंग अप अदर कॉन्सेप्ट्स ऑन कॉन्सेप्ट्स इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो जो मैं फर्स्ट कराने वाली हूँ, numerical first type of, they are based on calculation of mass uh, and charge on fundamental particles, mass as well as charge on the fundamental particles and charge on fundamental particles. Now what are fundamental particles? You must have studied in your theory part that an atom consists of three subatomic particles: protons, neutrons and electrons. Protons and neutrons are present inside the nucleus of the atom, and electron revolve in the extranuclear part, that is outside the nucleus. So these three fundamental particles have some charge and mass, out of which proton and electron actually have charge. Neutron is neutral, proton has positive charge, electron has negative charge, and then these all have some mass also. Proton का कुछ mass है which is almost equal to the mass of neutron, and then electron weighs very little, it has a very small amount of mass. तो उस पे बेस्ड हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल. Now the first one says calculate the number of electrons present in 1 mole of methane. Now what is methane? Methane is CH4. आपको इसके 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. सो सबसे पहले आपको इसके 1 मॉलिक्यूल में पता होने चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 molecule of methane. Now methane is a neutral molecule. तो neutral molecule में हम जितने भी atoms हैं उनका जो है उनके अंदर इंडिविजुअली हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे. सो CH4 has 4 carbon atoms, sorry, 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. Right now you can easily tell that the number of carbon atoms, if it is 1 in methane, then number of electrons in 1 carbon atom is equal to its atomic number, because in a neutral atom number of protons and number of electrons are equal. and जो 12 जो इसका सॉरी कार्बन का जो atomic number है that is 6 is 6. So 6 protons हैं, neutral है, and 6 ही इसमें electrons होंगे. 6 protons and 6 electrons. It will contain 6 electrons because atomic number is equal to number of protons. ठीक है. So it contains 6 electrons being a neutral atom. So कितने electrons होंगे 1 carbon atom में? 6. So 1 carbon atom has 6 electrons. Now hydrogen atom, atomic number 1. Being neutral, 1 will be the number of protons and 1 will be the number of electrons. Therefore 4 hydrogen atoms have 4 electrons. तो कितने electrons हो गए in total methane में? Therefore total number of electrons in
one molecule of methane is equal to 6 plus 4, that is 10 electrons. Now 1 mole में निकालने हैं. 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. So therefore इतने molecules में अगर एक molecule में मीथेन के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में 6.022 into 10 raised to power 23 into 10 electrons, which is equal to 6.022 into 10 raised to power 24 electrons. So ऐसे हमने निकाल लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन. ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी अमाउंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनफैक्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं. आपको किसी भी मॉलिक्यूल में, इनफैक्ट एनाइंस में भी आएगा, कैटाइंस में भी आएगा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, प्रोटॉन्स निकालना, न्यूट्रॉन्स निकालना आपको आ सकता है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. एज आई सेड, देखिए अब आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं एंड टोटल मास निकालना है उनका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने इन 7 mg ऑफ 14 कार्बन. कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स 12, 13, 14. सो 14 वाला जो आइसोटोप है उसके अंदर आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स and mass of one neutron. Assume that the mass of a neutron is 1.675 into 10 raised to power minus 27 kg. So सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg of 14c. नाउ पहले तो ये देखिए, इन वन एटम ऑफ कार्बन 14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर, number of neutrons, they are equal to atomic number. What is the atomic number of carbon? 6. Mass number 14 है. 14 minus 6 is equal to 8. So this gives us the number of neutrons. Neutrons कैसे निकाले जाते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 14 माइनस 6. तो 8 न्यूट्रॉन्स हो गए एक एटम में. हमें कितने में निकालने हैं? 7 mg में. तो मतलब हमें ग्राम और न्यूट्रॉन में रिलेशनशिप चाहिए. नाउ वी नो दैट 14 gram of nitrogen contains how many atoms of nitrogen? No, sorry, not nitrogen, we're talking about we are talking about 14 isotope of carbon. तो 14 इसका अगर मास नंबर है यानी कि एटॉमिक मास है तो 14 ग्राम ऑफ कार्बन हैज 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon 14 है ना. So that means 7 mg यानी कि 7 into 10 raised to power minus 3 gram, 7 mg of carbon has 6.022 into 10 raised to power 23 upon 14 into 7. 2, this is equal to 3.011 into 10 raised to power 23 atoms of carbon 14 है ना. अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं. हमें पता है एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स हैं तो इतने एटम्स में कितने हो जाएंगे? नो, वन एटम ऑफ कार्बन 14 हैज 8 न्यूट्रॉन्स. Therefore 3.011 into 10 raised to power 23 atoms of carbon 14 they will have itna multiplied by itna, which is equal to 24.088
इंटू 10 रेज टू पावर, आई थिंक मैंने गलती करी है, गलती मैंने ये करी है कि यहाँ पे 7 इंटू 10 रेज पर -3 छोड़ दिया ना, यहाँ पे मैंने ये मिस कर दिया, mg कन्वर्ट किया था ग्राम में, मैंने मिस कर दिया, तो ये बन गया था यहाँ पे 20, तो 20 so this is equal to 2.4088 into 10 raised to power 21 न्यूट्रॉन्स आ गया। सो व्हाट आई डिड, मैंने 7 mg में नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए पहले कार्बन 14 के, फिर उनमें हमने न्यूट्रॉन्स निकाले। क्या किया मैंने, पहले मैंने एक एटम ऑफ कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले, फिर जितना मुझे 7 mg बोला है उसमें मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकाले कितने हैं कार्बन 14 के, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। नाउ सेकेंड थिंग इज मास ऑफ, तो इतने न्यूट्रॉन्स का मास, अगर एक का मास इतने केजी है तो मास ऑफ if mass of one neutron, this is given to us, is equal to 1.675 into 10 raised to power -27 kg, then mass of कितने न्यूट्रॉन्स आए हैं 2.4088 into 10 raised to power 21 neutrons is equal to 1.675 into 10 raised to power -27 into 2.4088 into 10 raised to power 21, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 4.034 into 10 raised to power -6 kg. So this is the mass of neutrons contained in 7 mg of carbon 14. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 mole of electrons and total mass of 1 mole of electrons. Very simple. Charge on 1 mole of electron. For that, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्या होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ओके 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1. जस्ट अ सेकंड होल्ड ऑन, this is equal to 1.602 into 10 raised to power -19 coulomb. Now 1 mole of electrons मतलब 1 mole of electrons is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 electrons. Therefore, charge on 1 mole of electrons is equal to 1.602 into 10 raised to -19 से इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा कैलकुलेट करके 9.65 into 10 raised to power 4 कूलम। तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फेंकना है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये होता है 9.11 into 10 raised to power -31 kg. Therefore, mass of how many electrons, 1 mole, which is 6.022, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा 9.11 into 10 raised to power -31 into 6.022 into 10 raised to power 23, एंड ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करके 5.486 into 10 raised to power -7 kg। तो इलेक्ट्रॉन्स इतने लाइट होते हैं, इनका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है,
दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल मास. सो जो एटम का मास होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो अपना मास कंट्रीब्यूट नहीं करते बिकॉज दे आर वेरी लाइट इन वेट. ये आपने अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा होगा. कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम. नाउ वेरी सिंपल, हमें 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली ये निकालना है. इसको अगर सीधे शब्दों में बोलूं मैं इन सिंपल लैंग्वेज, दिस क्वेश्चन सेज calculate the number of electrons in 1 gram. So we know that mass of 1 electron is equal to 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg, right? Which is in grams equal to 9.11 into 10 raised to power minus 28 grams. So that means, so 9.11 into 10 raised to power minus 28 gram is the weight of how many electrons? 1 electron. तो 1 ग्राम में कितने हैं? Therefore 1 gram is the weight of 1 upon 9.11 into 10 raised to power minus 28. तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ये, 1.098 into 10 raised to power. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेट है क्योंकि 1 ग्राम इज क्वाइट एन अमाउंट. एज अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि 1 ग्राम इज क्वाइट एन अमाउंट फॉर देम, फॉर एन इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स व्हाई 1 ग्राम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1.098 इंटू 10 रेज टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स. चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं. ये हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर लिया, तो आपका अगेन मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही ये कवर हो गया. तो अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. नाउ अगेन दिस क्वेश्चन, हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसा ही है ये. फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ अमोनिया एट STP. यहाँ पे मास और इसका कोई STP से लेना देना नहीं है. मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, आपको नंबर ऑफ एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं जो 34 mg ऑफ अमोनिया में है. ठीक है, ओके. एंड विल द आंसर चेंज इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज? नो, देयर इज नो इफेक्ट इन दिस केस. पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ अमोनिया. नाउ वी नो दैट molecular mass of ammonia is 17. Molecular mass of ammonia is 17. That means 17 gram of ammonia contains how many molecules of ammonia? 6.02. तो यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया, राइट. तो 34 mg में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, वो हम बाद में आते हैं. पहले हम क्या करते हैं, 34 mg ऑफ अमोनिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया निकाल लेते हैं. देयरफॉर 34 mg दैट इज 34 into -3 ग्राम, यानी कि 34 mg of ammonia will contain 6.022 into 10 raised to the power 23 upon 17 into 34 into 10 raised to power -2. तो ये आ जाएगा 1.2044 into 10 raised to power 20. आ गए आपके मॉलिक्यूल्स of ammonia. Now, one molecule of ammonia contains how many protons? One molecule of ammonia contain one nitrogen atom plus 3 hydrogen atoms. Then number of protons will become equal to their atomic number. 7 protons नाइट्रोजन के, 3 protons हाइड्रोजन के. दिस इज इक्वल टू
10 protons. ठीक है, दिस इज इक्वल टू टोटल 10 प्रोटॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 10 प्रोटॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 1.2044 इंटू जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। सो देयरफॉर इफ one molecule of ammonia contain 10 protons is equal to how many protons? 10 protons. Then कितने molecules निकाले थे हमने 34 mg में? हमने निकाले थे 1.2044 into 1.2044 into 10 raised to the power 20 molecules of ammonia will contain 1.2044 into 10 raised to power 20 into 10, that is 1.2044 into 10 raised to power 21 protons. सेकेंड पार्ट क्या करना है हमें? इसी में हमें निकालने हैं mass of this much, number of protons. So if mass of one proton है हमें given है, if mass of one proton is equal to 1.67 26 into 10 raised to power minus 27 kg. Therefore, mass of 1.2044 into 10 raised to the power 21 protons will be equal to I realize मैंने क्या मिस्टेक करी है। मैं बहुत देर से मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करी थी मेरे इसमें। This will become 12.044 into 10 raised to power 20, तो ये होगा 12 पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज 12 पॉइंट। सो अब इसका मास ही उस अकॉर्डिंग आएगा इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, एक डेसिमल का मैंने गलती कर दिया था, दैट आई हैव करेक्टेड, इंटू 10 रेज टू पावर 21. Now this will become equal to 2.0, तो 145 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 kg आएगा। मुझे लग रहा था कि आई डिड अ डेसिमल का मिस्टेक, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट, सो दिस आई फाउंड आउट। ये वाली यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई होके 12.044 बनेगा, तो अभी आया आपका आंसर ये। सो दिस वाज अबाउट वेरी बेसिक थिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें गेन मोल कॉन्सेप्ट की बात है। नाउ आई विल बी टेकिंग अप नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें देखते हैं कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, but on the same topic atomic structure in my next video.